So, in this heartfulness meditation, generally, I mean, I think we are all teachers, including me. I'm also a teacher. So, I think, when it's a normal working day for all of us, most of the times we find ourselves into a situation like this कि I'm too busy. क्या क्या कर लें भाई, पढ़ा भी लें, पेपर सेटिंग कर लें, कॉपी चेकिंग कर लें, असाइनमेंट कर लें, एडमिनिस्ट्रेशन का काम कर लें, और क्या क्या नहीं कर लें हम कर लो, और थोड़ा मेडिटेशन भी कर लो. सो दिस साउंड्स टू बी अ बिट टू मच, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इतनी सारी चीजें हैं करने के लिए. सो माय टू डू लिस्ट इज एक्चुअली एंडलेस. सो आई एम ओवरवेल्म्ड विद वॉट एवर आई हैव. अब उसमें एक चीज और मैं ऐड कर लूं तो कैसे पॉसिबल है? तो मुझे लगता है कि हम में से काफी सारे लोग इससे सहमत होंगे. सो अगर हम एक रियल क्लास में होते तो मैं हैंड रेस करवा लेती, लेकिन अभी हम वर्चुअल क्लास में है तो मैं ऐसा मान लेती हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग इस बात से सहमत होंगे कि हमारी सिचुएशन ऐसी होती है, हमारे कमिटमेंट्स इतने ज्यादा है, अब इसमें हम एक मेडिटेशन और ऐड कैसे कर लें. तो मुझे एक मुल्ला नसरुद्दीन की स्टोरी आपके साथ याद शेयर करने की इच्छा हो रही है कि हम ये जो पिक्चर दिख रहा है कि वो मुल्ला जी जो है वो अपने गधे पर ही बैठते हैं और ढूंढ रहे हैं कि मेरा गधा कहाँ है, मेरा गधा कहाँ है. तो हमारे साथ भी थोड़ा कहीं ऐसा तो नहीं होता कि समय तो हमारे पास है पर हम उसी में ही ढूंढ रहे हैं, हम इतने कंफ्यूज्ड हैं, हम उसे प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, या जो भी रीजन है हम ढूंढ रहे हैं कि मेरी एनर्जी, मेरा समय कहाँ है जो मैं अब कर पाऊं. तो एक्चुअली व्हेन आई से, मेरे को एक बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट ये मिला और उसके बाद मैं बहुत कन्विंस हुई इस बात से. When someone says that I'm too busy, he's actually saying I'm not interested. So when I say that I'm too busy to go to the market, I say I'm not interested in going to the market at this point of time. Similarly, when I say that I'm too busy to sit and meditate, then I'm also trying to say that I'm not interested into meditating. Perhaps these things correlate. So why should I be interested in meditation? So we have discussed this over 2 days, but I would just like to briefly recap. Why should I be interested into meditation? So I must be interested in this because it is about myself. It is about enhancing my capacities. It is about refining my tendencies. In a nutshell, it is about evolution of my consciousness. So when my capacity is enhanced, my tendency is refined, I feel that my consciousness evolves. So what happens when my consciousness evolves? So actually on day one, Rajesh brother had talked about our existence is at three levels: body, mind, and soul. And then he also talked about the subtle body, which has man, buddhi, chit, ahankar. He touched upon this point. But actually, in a nutshell, if we say that that is the consciousness we are talking about. So what happens when the consciousness evolves? Then a person becomes aware of himself in a better way. A person becomes much aware of things around him. A person becomes aware of others. That is, he becomes more sensitive to other person's requirements. He becomes more compassionate. There is more of empathy. So when he has all these qualities, then he is able to see what he could not see before. I'm able to perceive things in a different way. So situations don't change outside, but my perception, मेरा नजरिया जिसको अपन कहते हैं, वो नजरिया बदल जाता है चीजों को देखने का. और जब नजरिया बदलता है, क्षमताएं बदलती हैं, तो फिर हम क्या कर पाते हैं? हम वो सब कुछ कर पाते हैं जो हम पहले नहीं कर पा रहे थे. सो I'm able to become what I was not so far. So this is a very, very important thing, that when consciousness evolves, we become a better person. And then my capacities evolve to do more things in a better way. And when I am able to do more things, actually it's about managing my energy in a better way. So when I am able to do all these things, then instead of being too busy, I become free to do what needs to be done. So I am able to channelize my energy in a better way. So isn't this a strong enough reason for all of us to convince ourselves to meditate on a daily basis, on a regular basis? Because that 30 minutes of meditation is going to improve my productivity, my creativity, and my utilization of remaining 23 hours of the day. So that's how.
It is. And when I was very new to this kind of meditation, तो कई बार जब लोग बोलते हैं कि चलो आप ये कर लो, इससे आपकी स्किल बढ़ जाएगी, तो मैं शायद ऐसा जवाब देती थी पहले कि नहीं नहीं अभी मैं नहीं कर रही हूँ, मैं बहुत बिजी हूँ. तो somehow this picture depicts कि somebody is saying may I help you, so I say no we are too busy. तो हम ये realize नहीं कर रहे हैं कि ये जो help है वो हमारी skill set को improve करने के लिए. So something like this only, this technique of meditation is actually for here to help us improve our skill set. Now with this background, I come to the third important tool, very powerful tool of heartfulness, which we say is the heartfulness prayer. And this is a tool which helps us to connect within. So when I was talking of this consciousness, evolution of consciousness, this is something that is within. Now how do I connect within? That's an important question. तो प्रेयर जो है वो प्रेयर एक इम्पोर्टेंट टूल है. प्रेयर, प्रार्थना, हम लोग बचपन से सीखते आए हैं, समझते आए हैं कि प्रार्थना एक संवाद करने का माध्यम है. किससे? तो वो ईश्वर से संवाद करने का माध्यम है. अब कौन सा ईश्वर? तो हम सबके लिए अपनी अपनी आस्था के केंद्र अलग हो सकते हैं. तो हमने अभी तक जैसा समझा है वो उससे संवाद स्थापित करने का माध्यम है. अब जब हम प्रार्थना की बात करते हैं तो मुझे कृष्ण और उद्धव का ये संवाद बहुत रेलेवेंट लगता है कि जब महाभारत का युद्ध हो गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद एक बार उद्धव ने कृष्ण से पूछा कि हे कृष्ण, तुम तो भगवान हो, तो तुमको तो सब कुछ पता था कि ये ऐसा युद्ध होगा. पहले तो वो द्यूत क्रीड़ा होगी और वो जुए में पांडव जो है वो अपना दांव पे सब कुछ लगा देंगे, हार जाएंगे. फिर द्रौपदी के साथ ऐसा होगा. फिर आप तो भगवान थे, आपको सब कुछ पता था, तो फिर आपने ये सब होने क्यों दिया? आपने इसे रोका क्यों नहीं? तो बहुत ही सुंदर कृष्ण ने उसमें समझाया है. कृष्ण ने कहा कि जब वो द्यूत क्रीड़ा खेल रहे थे पांडव, तब उन्होंने मुझे कहा था कि आप बाहर रहना. उन्होंने मुझे बुलाया नहीं था. द्रौपदी को जब घसीट के ले गए तब उसने मुझे नहीं पुकारा था. जब वो सब तरफ से हताश हो गई कि अब कुछ नहीं हो सकता, तब उसने मुझे पुकारा, और जैसे मुझे पुकारा मैं तुरंत वहां पर गया. तो कहने का तात्पर्य ये है कि ईश्वर अभी हमारी मदद को आ सकते हैं जब हम उन्हें पुकारें. तो अब हम उन्हें कैसे पुकारें, कैसे उनके साथ संवाद साधें, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. तो हार्टफुलनेस में प्रेयर को हम बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं. और ये जो प्रेयर है ये किसी एक्सटर्नल एंटिटी के साथ नहीं है. ये प्रेयर हमारे अंदर जो हमारा उच्चतम स्व है, जो मेरे अंदर की डिविनिटी है, उस डिविनिटी से कनेक्ट होने का ये एक माध्यम है. तो अब जब मैं इस प्रेयर के साथ अपने आप से कनेक्ट करती हूँ तो क्या होता है कि जो मेरा मेडिटेशन है, प्रेयर से मेरा तात्पर्य है वो भाव, वो फीलिंग, वो प्रार्थनामय स्थिति, वो प्रेम का भाव, वो समर्पण का भाव. जब मैं इस भाव के साथ अपने अंदर के ईश्वर से, ईश्वरत्व से, उस डिविनिटी से जुड़ती हूँ, तो मेरे मेडिटेशन की क्वालिटी चेंज होती है. अदरवाइज ये एक बहुत ही ड्राई सब्जेक्ट रह जाता है. अगर हम इस प्रार्थना के बगैर मोनोटोनसली या इसको मैकेनिकली करने की कोशिश करें तो ये बहुत ड्राई सब्जेक्ट हो जाता है. तो जैसे ही हम मेडिटेशन में इस प्रेयर को इन्वॉल्व करते हैं, इंक्लूड करते हैं, तो हमारे मेडिटेशन की क्वालिटी, अप्रोच, सब कुछ चेंज हो जाता है. तो एक्चुअली अब हम समझते हैं कि प्रार्थना यानी क्या. तो ये मुझे एक बहुत अच्छा सा डेफिनेशन इसका लगा कि प्रेयर इज नीदर अ मियर मेंटल एक्सरसाइज नॉर इट्स अ वोकल परफॉर्मेंस. मतलब ये कोई जैसे माला जपना है या सिर्फ बिना मन में भाव लाए कोई मंत्रोच्चार करना है, भजन गाना है, ये ऐसा कुछ नहीं है. इट्स नॉट अ मियर मेंटल एक्सरसाइज नॉर अ वोकल परफॉर्मेंस. It is far deeper than that. It is a spiritual transaction with the creator. तो ये बहुत गंभीर सी बात है कि तो प्रार्थना के पीछे उसका भाव जो है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है. अब प्रार्थना में एक और चीज हम समझते हैं कि प्रार्थना अभी तक हमें जितने सिखाई जाती है बचपन से लेकर अभी तक, तो अगर आप रिकॉल करें इसको, तो हम अभी तक हाथ जोड़ के मंदिर में जाते हैं या जो भी हमारा आस्था का स्थान है वहां पर हम जाते हैं और ईश्वर से क्या मांगते हैं? हम बोलते हैं कि मुझे पास करा दो, मुझे 95% मार्क्स दिला दो, मुझे नौकरी दिला दो, मेरा प्रमोशन करा दो, मेरा एडमिशन करा दो, ये दिला दो, मुझे मुझे कार दिला दो, मुझे एक बड़ा बंगला दिला दो. तो हम एक्चुअली ये चीजें मांगते रहते हैं. या मेरी सेहत अगर ठीक नहीं है तो हम मांगते हैं कि मेरी तबीयत ठीक करा दो.
सो एक्चुअली हम ईश्वर से ईश्वर को न मांगते हुए उसकी बनाई हुई चीजें मांगते रहते हैं। तो ये तो कुछ ऐसा हो गया कि एक राजा है और मैं उस राजा की बेटी हूँ और मेरे पिताजी मुझे अपना पूरा राज्य देने के लिए तत्पर बैठे हैं और मैं उनसे जाके मांगती हूँ 100 रुपए दे दो, 200 रुपए दे दो। तो मांगू भी तो क्या मांगू मैं उनसे, जब वो मुझे सब कुछ देने के लिए तैयार है, तो मैं ऐसी छोटी मोटी चीजें क्यों मांगू। तो कुछ इस तरह का भाव हम हार्टफुलनेस प्रेयर में मानते हैं कि हम ईश्वर से उसकी बनाई हुई चीजें ना मांगते हुए हम खुद ईश्वर को ही क्यों ना मांग लें। तो हम जब कनेक्ट करते हैं ईश्वर से हृदय में, तो हम ये मानते हैं। तो अब एक्चुअली अपनी समस्या ये है, तो हम ईश्वर को कह देते हैं कि भाई मुझे तो आता ही नहीं है, मुझे तो मांगना भी नहीं आता है, तो अब मुझे कौन बता सकता है कि क्या मांगू और कैसे मांगू। तो हम इसमें हमारे हार्टफुलनेस सिस्टम में एक छोटी सी प्रार्थना है। वो प्रार्थना एक्चुअली क्या है कि वो भाव है, इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट एंड देयर इज अ फीलिंग बिहाइंड दैट स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट। तो उस छोटे से 3 लाइन की 4 लाइन की प्रार्थना में हम इसी भाव को प्रकट करते हैं कि हे ईश्वर, मुझे मतलब मुझे एक्चुअली चाहिए क्या ये भी मुझे नहीं पता है, तो मैं क्या मांगू ये भी मुझे नहीं पता है, एक्चुअली क्या मांगा जाना चाहिए जीवन में ये मुझे नहीं पता है। तो इस छोटी प्रार्थना के जरिए हम उसके सामने अपनी हेल्पलेसनेस, अपना सरेंडर, समर्पण, ये उसके सामने एक्सप्रेस करते हैं